Hello everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So do you know the reality of UPSC prelims is that around 90% aspirants will get eliminated in prelims in just starting 5 minutes itself. You must be wondering how. So for this आप खुद को for next few minutes simply imagine करो that today is your prelims exam, you are sitting in the exam hall, it's 9:30 AM and the exam has just started. जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू किया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा बट हमें उसका आंसर नहीं आता है, सो वी मूव्ड ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. But again we couldn't able to solve the second question as well, so we skipped that question and moved on to the third one. थर्ड क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लगा कि ये तो सॉल्वेबल है, बट देन ये पेयर्स वाला क्वेश्चन निकला और अब हम कंफ्यूज हैं कि आंसर ओनली 2 होगा या ओनली 3 होगा. तो अनफॉर्चुनेटली हमें इसको भी स्किप करना ही पड़ेगा फॉर द मोमेंट. उसके बाद हम सीधे फोर्थ क्वेश्चन पे गए. तो वहां भी हमने देखा कि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट का तो पूरा आइडिया है, लेकिन सेकंड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम इसको भी मार्क नहीं कर सकते, हमें इसे भी छोड़ना पड़ेगा. उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पे गए, तो इसे पढ़ने के बाद लगा कि इसके बारे में तो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली हमें इस क्वेश्चन को भी छोड़ना पड़ेगा. वी डिडंट मार्क एनी सिंगल आंसर इन आवर OMR शीट. Now while attempting these questions in sequence 5-10 minutes have passed and हमें एक भी आंसर श्योरिटी से नहीं आता. Now think what would be your mental state at this point of time. There will be a fear of failure, you will panic, feel uncomfortable and start losing confidence. And this very scenario na is the ideal ground for making silly mistakes. Despite ki cutoff कितना ही लो हो, 70 marks हो, 80 marks हो, 90 marks हो. And due to these silly mistakes हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे एग्जाम में. Because when we are suffering from these feelings ना, तो हम आते हुए क्वेश्चंस को भी और ज्यादा डर डर के मार्क करेंगे because we must have lost the confidence by then. तो जिस वजह से हमारे आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे या हम उन्हें मार्क ही नहीं कर पाएंगे या उनको अटेम्प्ट करने के चक्कर में और ज्यादा टाइम लगा देंगे. With this, we also know that UPSC also never misses to surprise us every year. कभी वो awards and sports से questions पूछ लेते हैं, तो कभी वो पेयर वाले options देकर questions को ही tricky बना देते हैं. Therefore, as a consequence of attempting the paper like this in starting 5 minutes, we will end up messing our paper, ruining our performance despite all our efforts and hard work. So from this scenario, एक चीज तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आती है कि no matter हमने कितना ही पढ़ा हो, the only way to clear prelims is by utilizing our peak performance with a cool, calm and composed mindset. And to achieve this, today I will discuss how should we attempt the GS paper effectively without losing the confidence throughout the paper, how many questions we must attempt in both GS paper and the CSAT paper, what is the ideal way to attempt CSAT paper strategically, and how should we utilize the first 5 minutes of the exam to set the course for attaining our best performance in the paper. ठीक है? But yes, before we move ahead, be clear about one thing, that the only Brahmastra to clear prelims is to master PYQs, which I know most of you haven't done yet. That's why when time is less, I'll recommend McGraw-Hill Edge का 25-day 25 PYQs challenge for UPSC Prelims 2026. This will be a total game changer because यहाँ एक ही जगह हमें last 30 years के more than 4000 PYQs मिल जाते हैं, वो भी subject wise नहीं बल्कि topic wise भी. And with this, the course also covers more than 500 topics on which UPSC has ever framed questions on. They also provide us with topic-wise trend analysis to understand what UPSC actually asks in prelims with proper conceptual notes for better clarity and application. इसमें आपको CSAT के भी सारे PYQs topic-wise दिए गए हैं which can turn our weakness into scoring zone. So this is not just a book, it's a prelims weapon, and if you are serious about prelims, then you cannot ignore PYQs at this time. So start your 25-day transformation as the sale is going on from 28th till 30th of April. You can purchase this course at flat 50% discount using the code PYQTG from the link mentioned in the description below. ठीक है? तो चलो अब आगे इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना. सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस पेपर की, दैट हाउ टू अटेम्प्ट द जीएस पेपर इन एग्जाम हॉल इन 2 hours. सो फॉर दिस वी विल फॉलो द टाइम आइट्रेशन मेथड, जिसमें हम टोटल 3 आइट्रेशंस या 3 राउंड्स को टारगेट करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस रैंडमली, दैट टू इन 1 राउंड इटसेल्फ. बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि बस एक बारी में ही मैं क्वेश्चन बिल्कुल सही मार्क कर दूंगा या करूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा अगर मुझे नहीं आ रहा होगा, तो लेट मी टेल यू दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. बिकॉज तब आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहाँ पे आपका ज्यादा टाइम लग रहा होगा आंसर डिड्यूस करने में, है ना.
आप इसकी वजह से आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट अगर एक क्वेश्चन पे हो जाएगा तो लेट मी टेल यू कि आपका वहाँ पे कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन सफर हो जाएंगे जिन्हें आप पढ़ भी नहीं पाओगे इन दोस 2 आवर्स, एंड फिर आपको बाद में रियलाइज होगा कि यार वो क्वेश्चंस इजी थे, आई कुड हैव आंसर देम करेक्टली. सो इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन हम 3 राउंड्स को टारगेट करेंगे. देखो, द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड इज इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस इन दोस 2 आवर्स एंड ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर्स एज यू विल बी ग्लैंसिंग द क्वेश्चंस मोर देन वंस, thereby 100% इंक्रीजिंग योर स्कोर. ठीक, अब इसमें भी करना क्या है, सबसे पहला मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओवरव्यू. स्टार्टिंग के जो 5 मिनट्स है ना पेपर में, उसमें आपको सिर्फ फ्लिप करने हैं पेजेस को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100. सिर्फ 5 मिनट में आपको 1 to 100 सारे क्वेश्चंस को सिर्फ ग्लांस करना है. अब ग्लांस करने में करना क्या है, जो पर्पस हमारा ये है, एक तो हमें फटाफट पता करना है कि किस पेज पे किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसका फायदा ये होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो सब्जेक्ट हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हम वहां से स्टार्ट करेंगे. ना हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ना 50 से करेंगे, ना 100 से करेंगे. करेक्ट तरीका यह है कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है आप उसके क्वेश्चंस को पहले टारगेट करो. जैसे फॉर एग्जांपल 2024 का ही पेपर देखते हैं, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में सारे के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इनकमिंग सोलर रेडिएशन पे हो गया, ट्रोपोस्फेयर पे हो गया, देन उसके बाद वोल्केनिक इरप्शंस के प्रोडक्ट्स के ऊपर हो गया, आइसोथर्मल मैप्स हो गया. ठीक है, इस तरीके से सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए. मैं आगे आगे जाती जाऊंगी, देखती जाऊंगी. अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 17 से एनवायरमेंट के क्वेश्चंस शुरू हो गए. पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस के ऊपर यहाँ पे हो गया. ठीक है, ये स्पीशीज वाला क्वेश्चन हो गया. देन ये देखो पी फैमिली के ऊपर हो गया, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स हो गया. सारे स्पीशीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं. इस तरीके से मैं आगे चलती चली जाऊंगी कि ये सारे एनवायरमेंट के क्वेश्चंस और मैंने मार्क भी करूंगी ऊपर, यहाँ पे लिख दूंगी ताकि मुझे पता हो कि क्वेश्चन जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वहां से मुझे सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल हम आगे चलते थोड़ा सा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 32 से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ड्वार्फ स्टार्स के ऊपर. अब सपोज करो कि आपका साइंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, तो आप क्वेश्चन नंबर 32 से पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे. आप ड्वार्फ स्टार्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन ये रेडार वाला क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे. आप इन वाले क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करोगे. अब ऐसा मैं आपको इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे ना, तो आपका कंटिन्यूअसली कॉन्फिडेंस बना रहेगा बिकॉज आपके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां पे श्योर आते होंगे. ठीक है, आप जब ग्लांस कर रहे होगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यार यहां से मुझे पेपर शुरू करना है. इसके साथ जो दूसरा मेजर पर्पस है ऑफ डूइंग दिस ओवरव्यू ऑफ 5 मिनट्स इज दैट इट विल गिव यू टाइम टू एब्जॉर्ब द शॉक. यानी कि यूपीएससी जिस तरीके के हमें सरप्राइजेस देता है, जैसे पेयर्स वाले क्वेश्चन हो गए या असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए, बिकॉज इस तरीके से हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को भी डिकोड करने में हेल्प मिलती है. अगर आप सडनली क्वेश्चन कर रहे हो और अचानक से पेयर वाले क्वेश्चन आपको बीच में मिल जाते हैं, या कोई भी एक सपोज करो अनदर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो कहीं ना थोड़ा सा हमारा माइंडसेट हिल जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल 2022 या 2023 के पेपर में अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो इट डेफिनेटली गिव्स अ सेटबैक टू द स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गए. तो वो चीज ना हो, इसलिए शुरू के 5 मिनट में आप ग्लांस करो. जब स्टार्टिंग के 5 मिनट में ये कर लोगे ना, तब आपको उसके बाद एक्चुअल स्टार्ट करना है राउंड 1, जो आपको कंप्लीट 1 आवर का होगा. आपको वॉच से टाइम ट्रैक करते हुए चलना है, माइंडेड. ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, 1 घंटे में यू हैव टू असेस द लेवल ऑफ द पेपर. अब यहाँ पे क्या होगा, यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस एज पर योर प्रायोरिटी ऑर्डर. जो भी आपने सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल लगता है, अगर आपको साइंस सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है तो साइंस करो, सेकंड नंबर पे ज्योग्राफी लगता है तो ज्योग्राफी करो, थर्ड पे एनवायरमेंट लगता है तो थर्ड नंबर पे एनवायरमेंट के क्वेश्चंस करो. इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो. रीजन बीइंग द सेम कि आप तो एक तो इसमें कॉन्फिडेंट फील करोगे इस तरीके से आंसर्स मार्क करने में, दूसरा आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप होगा. जब आप आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो वाले मिलेंगे जिन्हें आप सॉल्व कर पा रहे हो, एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा और वही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हेल्प करेगा टू डिड्यूस द आंसर्स करेक्टली ऑफ दोज क्वेश्चंस जिनके आपको आंसर्स नहीं पता है. ठीक, अब इस पूरे 1 घंटे में आपको एक्चुअली करना क्या है, दैट यू हैव टू रीड ऑल द 100 क्वेश्चंस. ठीक, उन 100 क्वेश्चंस में भी जब आप पढ़ते हुए जाओगे एक एक क्वेश्चन को, जो आपके 100% श्योर क्वेश्चन है, आप 100% श्योर हो कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता है, उसको देन एंड देयर साइमल्टेनियसली ओएमआर में मार्क करना है. बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं 1 घंटे के बाद ओएमआर फिल करूंगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल लास्ट के 10 मिनट में फिल करूंगा. ये गलती मत करना, बिकॉज ऐसा करने से कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है कि हमें आंसर तो करेक्टली पता है, लेकिन हमने क्या किया कि सपोज करो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बी होना था, तो हमने उस बी ऑप्शन को मार्क कर दिया क्वेश्चन नंबर 52 में, जिसका आंसर सी था. तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हो सकते हैं. तो इस सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको सारे 100% जो श्योर क्वेश्चंस हैं उनको ओएमआर में देन एंड देयर मार्क करना है.
ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इस 1 घंटे में सिर्फ 100% श्योर क्वेश्चंस ही मार्क करने हैं, लेकिन साथ के साथ आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पे आप 50-50 उन क्वेश्चंस को डिड्यूस कर चुके होंगे, या तो आंसर ऑप्शन ए है या सी है। ऐसे क्वेश्चंस को आप सर्कल कर लो, बिकॉज इन्हें हम राउंड 2 में टारगेट करेंगे। इसके अलावा आपको 33% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जहां पे आपको सिर्फ इतना पता है कि इन 4 ऑप्शंस में से ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, बाकी 3 का आइडिया हमें नहीं है। उन क्वेश्चंस को आप मार्क कर लो बाय स्क्वायर। देखो ये जो मार्किंग्स है ना, ये बहुत रोल प्ले करते हैं टू सेव योर टाइम, ठीक, तो इसलिए ये करना जरूरी है। एंड आपको ऐसे क्वेश्चंस जो मिलने वाले हैं जिनका आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो उन पे सीधा लगा दो क्रॉस। ये 1 घंटे में आपको राउंड 1 में करना है। अब ऐसा करते हुए जो 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको डेफिनेटली कुछ टफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो आपने सपोज करो बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, मान लो मैं बोल रही हूँ कि साइंस स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आपको अगर साइंस में भी ऐसे 3-4 क्वेश्चन मिल गए जो बहुत टफ हैं, आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने साइंस अच्छे से पढ़ी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी ने टफ बनाए हैं, और वो सभी कैंडिडेट्स के लिए इक्वली टफ है, बिकॉज सबने सेम सोर्सेस पढ़े हैं। ठीक है, किसी ने ऐसा नहीं किया है कोई स्पेसिफिक सोर्स जाके पढ़ लिया और वहां से वो क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो इस माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर रख के चलो वहां पे कि अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो फिर वो सबके लिए टफ है। तो राउंड 1 में अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। यू हैव टू रीड ऑल द 100 क्वेश्चंस। सिर्फ जो 100% श्योर वाले क्वेश्चंस है, आपको 100% जिसका आंसर बिल्कुल मालूम है कि यही करेक्ट है, सिर्फ उसको ओएमआर में मार्क करना है। और ओएमआर में मार्क करने के बाद 1 घंटे के बाद ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट कर लेना कि आपके जो 100% श्योर क्वेश्चंस है ये कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक, इसमें आपको मैंने दोबारा बताया 50-50 वाले क्वेश्चंस को सर्कल मार्क करना है, 33% वाले को स्क्वायर मार्क करना है। ये आपको काम करना है। उसके बाद जो राउंड 2 होगा नेक्स्ट 40 मिनट्स का, इसमें हमारा टारगेट है टू डिड्यूस द आंसर विद द काम माइंडसेट। अब हम यहाँ पे टारगेट करेंगे नेक्स्ट 40 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ सर्कल वाले क्वेश्चंस को, यानी 50-50% वाले क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम नॉलेज, लॉजिक, एलिमिनेशन एंड इंटेलिजेंट गेसवर्क सब कुछ यूज करेंगे। और यूज करने के बाद अगर हम आंसर डिड्यूस कर पाते हैं कि हमने 2 ऑप्शंस में तो ब्रेक ही कर लिया था, अगर हम मान लो कंफ्यूज थे कि आंसर बी है या सी है, एंड अब हमें क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ आंसर बी है बाय यूजिंग ऑल दीज मेथड्स, तो उसे देन एंड देयर साइमल्टेनियसली हम ओएमआर में मार्क करेंगे। देखो इसमें एक और चीज ध्यान रखो, आपको सारे जो 50-50 प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है सारे के सारे मार्क करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने 10 मार्क कर दिया और 15 छोड़ दिए, नहीं। देखो यहाँ पे अगर हम वर्स्ट केस मान के भी चले कि आपको टोटल 33 क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते थे जिसमें आप 50-50 पे अटके हुए थे, अब मान लो इन 33 में आपके सिर्फ 12 ही सही होते हैं और 21 गलत हो जाते हैं, तो भी आपके 12 सही थे तो 24 मार्क्स पॉजिटिव के हो गए, 21 गलत थे तो 14 मार्क्स नेगेटिव के हो गए, तब भी आपके नेट 10 मार्क्स पॉजिटिव होंगे। सो ये बहुत हाई चांस है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जो 50-50 प्रोबेबिलिटी वाले हैं उनको अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो देयर इज 99% चांस कि आपका जो नेट निकल करके आएगा वो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, नेगेटिव में आप नहीं जाने वाले हो। ठीक, तो आप जब नेक्स्ट 40 मिनट्स में ये काम कर लोगे तो आप टोटल आपके 1 आवर 45 मिनट्स खत्म हो गए हैं। अब ये जो लास्ट का 15 मिनट है, अब देखो आप जितना भी हाथ पैर मार सकते थे, जितना भी अपना रैशनल माइंडसेट यूज कर सकते थे, वो आपने राउंड 1 एंड राउंड 2 में ऑलरेडी कर लिया है। अभी जो लास्ट के 15 मिनट्स है, दिस इज द टाइम फॉर डूइंग द इंटेलिजेंट तुक्का वर्क। बेसिकली मैं इसको तुक्का ही बोलती हूँ, लेकिन ये तुक्का भी एक इंटेलिजेंट तुक्का होता है, ऐसे हवाबाजी का तुक्का नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हमें ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जिनके सही होने का चांस 33% है, जिन्हें हमने स्क्वायर मार्क किया था कि हमें 4 में से बस एक ही ऑप्शन पता है कि ये तो आंसर नहीं है, अब हम 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने जितना भी प्रिपरेशन वर्क किया हुआ है उसको यूटिलाइज करते हुए बाय लॉजिक, बाय इंटेलिजेंट गेस वर्क हम कोशिश करेंगे आंसर्स को डिड्यूस करने की। अगर आंसर निकल जाता है तो फिर हम उसको मार्क करेंगे, अदरवाइज वी विल सिंपली लीव दीज क्वेश्चंस। तो इस तरीके से जो टाइम आइट्रेशन मेथड है, 2 घंटे में आपको इस तरीके से जीएस का पेपर कवर करना है। अब अच्छा, एक और जो मेन डाउट आता है कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए जीएस पेपर में और सीसैट में, तो वो चीज समझो। देखो जीएस में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं वो आपका डिपेंड करेगा फर्स्ट राउंड पे, कि फर्स्ट राउंड के बाद में जो आपके 100% श्योर वाले क्वेश्चंस थे ना ओएमआर में, उन्हें काउंट करो। और अगर उन क्वेश्चंस का रेंज मान लो 25 से 27 क्वेश्चन से कम आता है, तो अगर आप उसमें भी आप मान के चलो कि एक एरर हो सकता है कि आपके 2-3 क्वेश्चन उसमें भी गलत हो जाएं, तो मोटा मोटा आपको 45 to 48 मार्क्स वहां पे मिलने वाला है। तो इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, हमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब इस केस में हमें क्या करना है, जितने भी 50-50 वाले क्वेश्चंस थे उन्हें टारगेट करना है, और साथ के साथ हमें सभी तरीके के जो 33% वाले क्वेश्चंस थे उनको सेकंड प्रायोरिटी पर टारगेट करना है, और बिल्कुल लास्ट में हमें तुक्का वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना है, वो भी इंटेलिजेंट गेस वर्क वाला तुक्का। आई एम अगेन टेलिंग यू, हवाबाजी वाला नहीं।
ठीक, अब मान लो लेकिन यही रेंज आपकी फर्स्ट राउंड के बाद जो श्योर क्वेश्चंस की रेंज है ये नियर अबाउट 30-35 हो जाती है, तो उसमें मान लो कि थोड़ा बहुत एरर मार्जिन के बाद आपके 58 to 65 मार्क्स बनते हैं। तो अब आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगी या करूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा, मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टारगेट करेंगे सबसे पहले अगेन 50-50 क्वेश्चंस को। अब मान लो अगर ये क्वेश्चंस आपके 25-30 क्वेश्चंस हैं 50-50 वाले, और अगर आपने इन सभी को सॉल्व कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक 33% वाला जो क्वेश्चन का रेंज है या फिर जो आपको बिल्कुल ही जिनके बारे में आइडिया नहीं है उन्हें ट्राई करने की जरूरत है। सो कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जीएस में वो इस पे डिपेंड करता है। बात रही सीसैट पेपर की, तो मैंने आपको सीसैट वाली वीडियो में भी बताया था हर बार कि हमें टोटल 80 क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, लेकिन हाँ हमें टारगेट करना है 50 क्वेश्चंस को, जिसमें भी ऐसा नहीं होगा सिर्फ कि मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे या रीजनिंग के होंगे, कॉम्प्रिहेंशन के होंगे ही नहीं, तीनों का ब्लेंड होना चाहिए। बिकॉज अगर हम 50 क्वेश्चंस भी टारगेट करके चलते हैं और मान लेते हैं कि उसमें अगर हमारे 17 क्वेश्चंस गलत भी हो गए तब भी हमें नेट में जाकर के 68.5 मार्क्स तो मिल ही रहे हैं, और हमें जरूरी कितना है मार्क्स लाना 67.5 मार्क्स, हमें टोटल 27 नेट करेक्ट क्वेश्चंस चाहिए क्योंकि सीसैट को क्वालिफाई करने के लिए। आप समझ रहे हो यहाँ पे बात। अगर आपको सीसैट पे डाउट हो रहा है, अगर आपने उस सीसैट को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है, आपका कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल ही वीक है, मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, तो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी सिर्फ आधे घंटे की वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देख के चले जाओगे और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आई एम टेलिंग यू आप आराम से नियर अबाउट 20 to 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 27 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। तो ये तो सीसैट की हमने बात कर ली कि हमें कितने क्वेश्चन को टारगेट करना है, लेकिन सीसैट के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे हमने जीएस की बात की थी तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो जो फर्स्ट 10 मिनट्स है ना उसमें हमें सारे के सारे 80 क्वेश्चंस को ग्लांस करना है, सॉल्व नहीं करना है, ग्लांस करना है, जैसे हमने 5 मिनट में जीएस के पेपर में किया था। फिर उन 80 क्वेश्चंस में हमें अपने अकॉर्डिंग 50 इजी क्वेश्चंस को फिगर आउट करना है और उनको मार्क करके रख लेना है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपके डायरेक्शन के हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो गए, या ऐसे कॉम्प्रिहेंशंस हो गए जहाँ पे एक पैसेज पढ़ने पे आपके 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो उन कॉम्प्रिहेंशंस को बिल्कुल टारगेट करो, ठीक है। एंड उसके बाद 10 मिनट में शुरू में ये काम करने के बाद जो नेक्स्ट 50 मिनट से टारगेट करो कि 25 क्वेश्चन हम उन 50 मिनट्स में कर लेंगे, और फिर जो बचा हुआ लास्ट का 1 घंटा होगा ना उसमें आप बचे हुए और 25 क्वेश्चन कर लेना। सो 50 क्वेश्चन आपको इस तरीके से सीसैट में प्रैक्टिस करने हैं। बात रही कि हमें फर्स्ट 5 मिनट्स को जीएस के पेपर में कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हम पूरा प्रोडक्टिवली और अपने बेस्ट पोटेंशियल से जीएस के पेपर को अटेम्प्ट कर सके, उसे मैंने ऑलरेडी ऊपर ओवरव्यू वाले आइट्रेशन के सेक्शन में आपको प्रॉपर समझा दिया था उसका यूसेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जीएस का पेपर अटेम्प्ट करना है, सीसैट का करना है, कितने क्वेश्चंस दोनों में लगाने हैं, इसकी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो सो यू कैन डू कमेंट बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।